Factorization of algebraic expression. We'll see the introduction first. Now see what is given. The process of writing an algebraic expression as the product of two or more algebraic expression is called as factorization. Okay, किसी भी algebraic expression को जब हम लोग split करते हैं तो उसके क्या होता है, टू या फिर मोर देन टू टर्म्स या फिर मोर देन टू algebraic expressions फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं factorization. Okay, like for example, 3m square n cube can be written as 3 into m into m into n into n into n. Okay, are irreducible factors of 3m square n cube. ओके यहाँ पे अगर हमको इसको रिड्यूस करना है तो हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट अभी उसके नीचे एग्जाम्पल देखो. कंसिडर एन algebraic expression 15xy plus 25xy square. So we will write down the factors of 15xy first. What are the factors? 3, 5, x, comma y are the factors, and here the factors are what? 5, 5, x, comma y. So what are the common terms here now? Here also 5 is there. Here also 5 is there. Here also x is there. Here also x is there. Here also y is there. Here also y is there. So what are the common terms then? 5xy. Okay. 5xy is the common term. So what is remaining now? From 15xy, what is remaining? 3 is remaining. And 3. फ्रॉम 25xy स्क्वायर व्हाट इज रिमेनिंग, 5y इज रिमेनिंग. अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा. ओके जैसे हम लोग कॉमन फैक्टर्स लेते थे ना एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर्स लेना है. Now, in this method, we take out common factors of the terms of an algebraic expression outside the bracket. Then divide each term by the common factor and write the quotient of each term in the bracket. Okay. तो हम लोग क्या करते हैं, common factor से हम लोग divide करते हैं individually. कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं और फिर इंडिविजुअली जो कॉमन फैक्टर आता है वो हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग या फिर अनकॉमन पार्ट है वो हम लोग लिखते हैं. लाइक सी हियर वन एग्जांपल इज देयर. फैक्टराइज द फॉलोइंग. नाउ इट इज गिवन 21x square y minus 28x square y cube. Okay, so what I can write for 21x square y? 3 into 7 is 21 into x into y. And for 28x square y cube, what I can write? 2 into 2, 4. 7 into 2 into 2. So 2 into 2 into 7 into x X into. into X into Y into Y into Y. Okay. So what is common now? See here, this 7 is common. This x is common. Again, this x is common. This y is common. सो जो कॉमन वाला पार्ट है वो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं. सो व्हाट इज द कॉमन पार्ट देन? 7x square. 7x square y. 7x. 7x square y is the common part. Now what is remaining? 21x square y में से क्या बचा है, ये ऊपर वाले इसमें से क्या बचा है, सिर्फ 3. 3 बचा है. 3. ओके और बीच में क्या साइन आएगा, माइनस साइन आएगा. ओके सी Minus. हियर देयर इज अ माइनस साइन, सो दिस माइनस साइन विल कम एज इट इज हियर. अभी यहाँ पे नीचे 28x square y cube में से क्या बचा है, 4y square. 4y square. ओके सो इन दिस वे वी टेक कॉमन. ओके कॉमन फैक्टर्स हम लोग इस तरीके से लेते हैं. ये कुछ भी नहीं होता है, बस हमारा जो आंसर है हम लोग उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉमन टर्म्स निकाल के, जो अनकॉमन टर्म्स है उसको ब्रैकेट में लिख के. ओके ट्राई दिस सेकेंड वन. व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन दिस टू टर्म्स, टेल मी व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर.
बोलो क्या आएगा कॉमन? सर कॉमन आएगा 5BC. 5BC. Everyone is getting the same common factor. Okay, see here now. I am solving the second one. Now see 5BC. 15A square B square C. उसके बाद है 20B cube C square. उसके बाद है Sir, 5BC is coming. 25BC. ओके, थोड़ा सा अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं. सो 3 into 5 is 15 multiplied by A into A into B into B into C. Next is what? 20. So 2 2s are 4 multiplied by 5 is 20. B into B into B into C into C. उसके बाद 25BC. सो 5 into 5 into B into C. अभी देखो मैं A कॉमन नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे. What is the reason why I can't take A as common? Because this 20 B cube C square term, there is no A only in this term. A. Okay. तो कॉमन हम कब लेते हैं? जब वो सब चीजों में आता हो. ओके, लाइक यहाँ पे 15A स्क्वायर B स्क्वायर C में भी वो आना चाहिए, 20B क्यूब C स्क्वायर में भी वो आना चाहिए, 25BC में भी वो आना चाहिए. देन ओनली वी कैन टेक दैट पार्ट एज कॉमन. सो सी हियर नाउ 5 इज कमिंग. So 5 I can take common. Again B is coming. And again C is coming. So 5BC I can take as common. So what is remaining in the bracket now? Tell me. 3A square B 3A square B. 3A minus square B minus 4B square C 4, plus 5. 5. plus 5. Okay. So after taking 5BC as common, this will be remaining in the bracket. सर एक डाउट था. बोलो. सर 20B³ C² को 2 into 10 क्यों नहीं लिख सकते? 20 के आपको सीधा सीधा प्राइम फैक्टर्स निकालना है. लिख सकते हैं अच्छा. बट वो लेके फायदा नहीं है. कॉमन नहीं निकाल पाओगे ना आप. सीधा सीधा आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो. हाँ सर. ओके. यस सर. See the next one. Now what they have said in the next topic, factorization by regrouping the terms. Okay. So factorization करना है अभी by regrouping the terms. Now sometimes there is no common factor in all the terms of the given expression. Then we can make the groups of the terms in such a way that after taking common from individual groups, remaining terms remain same. Okay. अभी देखो यहाँ पे कुछ है क्या? common factor है क्या कुछ? फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे No, sir. एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट वन में यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. ओके. तो लाइक यहाँ पे आपको किसका ग्रुप करना पड़ेगा देन? विच टू टर्म्स वी विल टेक इन अ ग्रुप? बोलो. X and 6Y. सी अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसका ग्रुपिंग करना है तो आप 1 by 1 चेक कीजिए. x + 6y अगर मैं लेता हूँ, क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं नहीं है. सर. No, ओके. sir. x - 6 अगर मैं लेता हूँ, क्या इसमें कुछ कॉमन है? No, sir. नो सर. No, So sir. मुझे क्या लेना पड़ेगा? x minus xy. 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 So what is common here now in these two? X is common. X. So X. 1 is minus common. y is remaining. Okay. So इस तरीके से 1 कॉमन minus. लेना है आपको. 1 by 1 चेक कीजिए आप किसमें. Sir, हाँ. sir, I am not getting. What you are not getting? Sir, this problem. अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है ना उसको. अभी कहाँ उसका कुछ भी नहीं किया है अभी हमने. बस मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन किस तरीके से लेना है. ओके. What they have said, sometimes there is no common factor in all the terms of the given expression. Then what we do, we make groups of the terms.
ओके, सो आई एम मेकिंग द ग्रुप ऑफ द टर्म्स नाउ। x प्लस 6y मैंने पहले ग्रुप लिया है, क्या इसमें कुछ कॉमन है आदित्य? No, sir. हाँ, सो दैट्स व्हाई एलिमिनेट दिस। उसके बाद x प्लस 6y लिया, हाँ पहले ये दो टर्म लिया, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला, तो फिर ये और ये टर्म साथ में लिया x माइनस 6, क्या इसमें कुछ कॉमन है? No, sir. हाँ, तो इसमें भी नहीं है, तो फिर लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म लो। अब इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन X, है, 1 - y। ओके, तो इस तरीके Y. से आपको चेक करना है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ चेक किस तरीके से करना है, इसको लिखना ऐसा नहीं है। अभी देखो, अभी इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन में लिखता हूँ यहाँ पे। तो कॉमन किस में मिल रहा था? फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो उन दोनों को साथ में लिखना है, Last. और बीच वाले जो दो टर्म्स हैं उनको साथ में लिखना है। तो ये दोनों में क्या कॉमन है? X. हाँ, तो बचा क्या? 1 - 1 1। minus Y. और ये दोनों में क्या कॉमन है? 6. +6। तो ये Yes. क्या आएगा? y - 1। 1. ओके, y Yes. -1। अभी देखो, यहाँ पे 1 - y आ रहा है, यहाँ पे y -1 आ रहा है, One. तो या तो मैं 1 - y को y -1 बना सकता हूँ, या फिर y -1 को 1 - y बना सकता हूँ। कैसे? सी हियर नाउ, 1 - y, I will keep this portion as it is. Now I will bring a minus sign here. Okay. Yes. अभी देखो, ठीक है, आपको ये और ज्यादा कंफ्यूज होगा, मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दो। अभी देखो, मुझे दोनों जगह पे 1 - y लाना है। Why I have to bring 1 - y? Because I have to take 1 - y as common. Okay. Common. So x -1 - y, x in bracket 1 - y, I will write it as it is. अभी देखो, यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया था ये दोनों टर्म्स में? Y. No, 6 6 plus 6. +6 लिया था ना। अभी आप -6 कॉमन लेके देखो क्या आता है, बोलो। -y Minus प्लस Y plus 1. +1, करेक्ट। सो अभी Yes. इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं? So how did you get the minus y? -6 कॉमन लेने के बाद। Minus plus. सुशांत, -6 कॉमन लिया है मैंने यहाँ पे। पहले बार मैंने +6 कॉमन लिया था, अभी मैं -6 कॉमन ले रहा हूँ। वाई आई एम टेकिंग इट, आई विल क्लियर इट। ओके, अभी -6 कॉमन लेने के बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 - y। नाउ सी दिस टू टर्म्स हैव बिकम सेम, सो व्हाट आई कैन राइट? 1 - y in one bracket That's and why. x - 6 in other bracket. ओके, अगर आप ये इसको +6 अगर कॉमन लेते हो, तो फिर बाद में आप कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे। See, I will write it here. 1 - y. If I take +6 as common, so y -1. Can we take common now? We cannot take common. So we cannot simplify it. That's why I have taken -6 as common. Getting my point? हाँ sir, got. So 1 - y in one bracket and x -6 in other bracket. ओके, अगर प्लस से कॉमन नहीं आ रहा है, सेम कॉमन नहीं आ रहा है, तो माइनस वाला कॉमन लेना है आपको। ओके, सिंपल लॉजिक आप ध्यान में रखिए। सर मतलब ये ट्रायल एंड एरर मेथड है क्या? ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है ये, एक्चुअली ये सर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर प्लस से कॉमन नहीं आ रहा है तो माइनस कॉमन लेना है। एक्चुअली तो वो देखते से ही समझ में आना चाहिए कि क्या कॉमन आने वाला है करके। ओके, आप जब n नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, तब आपको क्लियर होगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, now we will do the next one. Second one. Now see here, there is no common factor in all the terms. सारे terms में से हम लोग कुछ भी common नहीं निकाल सकते। तो अगर केस आता है कि जब हम सारे terms में से कुछ भी common नहीं निकाल सकते हैं, तो what we do? We take the group of terms. Okay, तो अभी मुझे बोलो 9xy और 6yz में से मैं क्या common ले सकता हूँ क्या कुछ? Yes, No. sir. Yes. Yes, sir, y. 3 Yes, and we y. can take. Yes, sir. 3 and y. 3 and y I can take as common. Okay, so I will take it.
So 3 and y I am taking as common. So what is remaining now? 3x is remaining plus 2z is remaining. 3 2z. z. ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही टर्म बनेगा. देखो 9xy प्लस 6yz. आप मल्टीप्लाई करके देखो. 3y multiplied by 3x is what? 9xy. And 3y xy. multiplied by 2z is what? 6yz. Okay. Now from these two terms, what I can take as common? Phi and P. Phi and P, yes. Now I am taking plus 5p as common. Huh? So what I am getting in the bracket? 3x. 3p. 3x. 3x plus 2z. Plus Z. 2. Okay, now see, these two terms are same, so I can take these two terms as common now. So 3x plus 2z in one bracket and 3y 3y plus plus 5p. 5p in the other bracket. Okay. तो इस तरीके से आपको ग्रुप बना के कॉमन लेना है. फिर इफ यू आर नॉट गेटिंग अ कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स, इन दैट केस व्हाट वी डू, वी मेक द groupings and then we take the common factor. Is it clear to you? When we will do examples, that time again it Yes, will sir. be more clear. Don't worry about it. Just keep it in mind कि जब भी हम लोग सारे टर्म्स में से कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, वो केस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. बस इतना ध्यान में रखिए. ओके. Keep the mic off. Next is what? Factorization using identities. Now, factorization is the reverse process of multiplication. So we use standard identities to factorize the expression in special cases. Okay. So factorization is nothing but it is the वो जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होता है उसी का आंसर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइज. सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइज. ओके. नाउ सी हियर, using the identities we will factorize now. Using identities, factorize the following. Now what is given? 4x square plus 20xy plus 25y square. तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पे? सारे प्लस साइन है. बोलो मुझे which identity will First. Second First. identity. First. Second identity. First. First identity. second First. Second. second identity we will be using here. Second identity we will be using here. See, first identity जो है आपका, आप इतना कंफ्यूज मत हो सारे आइडेंटिटीज में. It is what? It is x square plus a plus b multiplied by x plus ab. करेक्ट. तो अभी देखो यहाँ पे हमको क्या गिवन है? 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर. ओके. सो बोलो मुझे यहाँ पे कैसे, क्या फर्स्ट आइडेंटिटी बोल रहे हो आप? फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या होता है? ये ब्रैकेट का पहला टर्म और ये ब्रैकेट का पहला टर्म सेम होना चाहिए. ओके. सेम होना. हाँ. अभी यहाँ पे RHS वाला पोर्शन देखो. अभी RHS वाला पोर्शन, यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है. ठीक है, हमको RHS कंपेयर करना पड़ेगा. वी विल हैव टू कंपेयर द RHS हियर. ओके. सो यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे y स्क्वायर वाला टर्म है, बट यहाँ पे लास्ट में है क्या y स्क्वायर वाला टर्म? नो. सो हाउ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट आइडेंटिटी? फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं लगेगा यहाँ पे. ओके. सेकेंड आइडेंटिटी लगेगा. नाउ सी व्हाट इज योर सेकेंड आइडेंटिटी? x प्लस वाई. हम इसको a और b में लिखते हैं. चलो कंफ्यूज नहीं होगा फिर. a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर plus 2ab plus b square. Okay. Now compare the RHS portion with this portion. So see here now, x square और a square वाला term है. Last में देखो 25y square और b square वाला term है. That means second identity is fit here. Okay. It is applicable here. So what we can write? a square which is equal to 4x square. तो a का value क्या होगा फिर? 2x. 4x. 2x. 2x.
ए स्क्वायर इज Yes, इक्वल sir. टू 4x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लो आप ऑन द बोथ द साइड्स, सो ए का वैल्यू आएगा 2x। हाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 25y स्क्वायर, स्क्वायर रूट लो आप, बी का वैल्यू मिलेगा 5y। 5y ओके, y. उसके बाद 5y मिडल वाला टर्म कंपेयर करेंगे, 2ab विल बी इक्वल टू व्हाट, 20xy। तो अभी ए और बी का वैल्यू है मेरे पास, पुट करके देखो सेम आता है क्या मिडल वाला टर्म, 2 इंटू ए क्या है मेरा 2x, बी क्या है मेरा 5y, so whether it is coming 20xy, yes it is coming. So second yes identity is applicable here. So what is the value of a is equal to 2x, what is the value of b is equal to 5y। तो अभी इधर वाला पार्ट लिखेंगे अभी हम लोग, so what it will become, ये वाला पार्ट अभी हमको लिखना है यहाँ पे, a का वैल्यू क्या है 2x, b का वैल्यू क्या है 5y का होल स्क्वायर। अब इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y multiplied by 2x plus 5y, this is nothing but the factorization। ये जो है इसका फैक्टर्स ये है 2x plus 5y, 2x plus 5y। is it clear to you? हम लोगों ने ऐसे ही किया था, जो हमारा 9.4 एक्सरसाइज था ना, इसी तरीके से हमने वहां पे भी क्वेश्चंस किए थे। ओके, तो सेम वैसे ही करना है हमको, बस फाइनल आंसर हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करके लिखते हैं यहाँ पे। Is it clear to you? Is it clear to you? yes sir Yes, sir. लग तो नहीं रहा है मुझे कुछ। See the second one. Which identity we will be using here? काय ते कुठं मांडायचं sir we will use identity Third. Third. हाँ, third sir. identity so what is third Minus identity? It is x minus y का whole square. It is whole square x square. x square plus minus 2xy plus y square Okay. प्लस प्लस वाय स्क्वायर तो अभी देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कंपेयर करना है आपको। ओके, सो व्हाट वी विल गेट नाउ, x square X square equals to 81 a square b. a square b, 9ab so x will come what 9ab। equal to 9ab. 9ab. ओके, x will come what 9ab। हाँ, लास्ट वाला टर्म कंपेयर करो अभी, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 c स्क्वायर, C तो y कितना आ y जाएगा। to 10c. Square. हाँ, अभी मिडल 10. वाला 10. चेक करेंगे अभी हम लोग। हाँ, पुढं करायचं मिडल वाला चेक करेंगे, -2xy शुड कम इक्वल टू -180 a b ते कसं आहे मम्मी जर काहीतरी कीप द माइक ऑफ। ओके, तो अभी x और y का वैल्यू है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x क्या है मेरा 9ab, y क्या है मेरा 10c। देखो बोला आता है क्या 180 -180 abc, it will come। Yes, sir. Okay, so our third identity which we have applied, it is correct because all the terms are coming correct na, so our third identity which we have applied, it is correct। So what we can write now, x के जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 9, 9ab. और y के जगह पे 10c. 9ab माइनस 10c का होल स्क्वायर होगा ये, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9ab माइनस 10c मल्टीप्लाइड बाय 9ab माइनस 10c, that's it। Is it clear to you? Yes, sir. Okay, see the next one then, again using identities factorize the following। ओके, ये आइडेंटिटीज जो अभी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस केस में और यहाँ पे भी, ये ऑलरेडी हमको फैक्टर्स ही बना के देती है। सी हियर नाउ, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, व्हाट इट इज Whole x square. स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। What is our third identity, x minus y का whole square, it is what x square minus 2xy plus y square। What is our fourth identity, x square minus y square, so what it gives to us, x minus y X multiplied by square.
Whole x माइनस वाई plus y. मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। तो हमको इधर वाला पार्ट गिवन था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, उस पे से हम लोग ये वाला पार्ट लिख रहे थे, करेक्ट? Now here for this Yes. identity, this part is given, and from this part we can write this part using the identity. आइडेंटिटी को उल्टा सीधा दोनों एंगल से आपको यूज करना आना चाहिए। ओके, प्रीवियस Yes, केस में sir. हमने ये पार्ट से ये पार्ट लिखा था, भी यहाँ पे हमको ये पार्ट से ये पार्ट लिखना है। दैट्स इट, उतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। Sir, it is easier. हाँ, वेरी इजी। सो यूजिंग आइडेंटिटी, which identity? fourth. So Fourth. I am writing identity 4 in terms of a and b. A square minus b square, it will be equal to what? A minus b multiplied by a plus b. A plus B. Okay. So now compare this part and this part. Tell me the value of a and b. A is equals to x and B is equals to 4y. अगर कंपेयर करना नहीं आ रहा है तो एज इट इज फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करो, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो ए कितना आ जाएगा? एक्स। उसके बाद X. सेकंड टर्म क्या है? बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू B 16 square. वाई स्क्वायर, Y square. so b will B be is what? equals to 4y. 4y. b will be 4y. equal to 4y. So now just put the values. अभी ये वाला पार्ट हमको लिखना है, so what it will come? X square minus X 16 minus 4y. will be equal to what? It will be equal to X x minus 4y. and x plus 4y. 4y. That's it. These are the factors. अभी हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज कर रहे हैं। सी यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे, यहाँ पे हमारे पास कुछ आइडेंटिटी था क्या? नहीं था। हम लोग यहाँ पे कैसे फैक्टराइज कर रहे थे? कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर रहे थे। हाँ ओके, here also we took Yes. common between two terms and then we factorized it. यहाँ पे अभी आइडेंटिटी फिट हो रहा है, तो हम लोग आइडेंटिटी की हेल्प से उसको फैक्टराइज कर रहे हैं। Okay, now try the next one, second one of this. Tell me what will be the factors. What will be the factors? I avoid her. What will be the factors? Only 3. Only 3. सर आइडेंटिटी तो फोर्थ वाली है यहाँ पे। हाँ, तो फोर्थ वाली ही लगाना है आपको। यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना है आपको, कॉमन नहीं निकालना है। यहाँ पे जहां पे आइडेंटिटी एप्लीकेबल है ना, वहां सीधा आइडेंटिटी अप्लाई करके फैक्टराइज करना है। जहां पे आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं, वहां कॉमन निकालना है हमको। ओके, सो नाउ व्हाट इट विल बिकम? 75 m square minus 48 n square. Okay, so which identity we can apply here? Fourth. Fourth. Okay, now see here, one drawback is there. अभी 75 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या आप? No, sir. 48 नहीं का सर, नहीं निकाल नहीं। तो हम लोग बट क्या सर कर? एम स्क्वायर का निकाल सकते हैं। हाँ, तो उसका निकाल के फायदा नहीं है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप हम लोग इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 75 और 48 में से जो कुछ भी कॉमन निकल सकता है, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो हम लोग 3 कॉमन निकाल सर सकते हैं, 3, तो बचेगा क्या? Yes. 25 m। 25 m and 16 n square। अभी देखो यहाँ पे आप फोर्थ आइडेंटिटी लगाओ, ये ब्रैकेट वाले टर्म को, यू विल गेट द आंसर।
Why I have done such arrangement? Because I cannot find the square root of 75. Means I can find it using long division method, but यहाँ पे हमको decimal में नहीं जाना है. Okay, जितना simple है उतना simple रखना है उसको. So अभी लगाओ identity 4 using identity 4. Okay, what is identity 4? It is x square minus y square. X square It is minus y equal square. to x minus y multiplied by x plus y. X plus y. तो ये पोर्शन इसके साथ कंपेयर करो, मुझे बोलो x square will be equal to what? It will be equal to 25x square. 25 So x will come what? 5m. 5 And y square will be equal to what? 16n square. So y will come what? 4n. That's it. 4n. We have the value of x and y. Now 3 will be as it is. And in place of this bracket, what we can write? 5m minus 4n minus 4n, and 5m plus 5m plus 4n. that's it. Try the next one. Third one. Again, you will use fourth identity only. Yes, sir. Sir, it will come 9p square minus 16q raised to 16 Q square. 16q square into the bracket 9p square plus 16q square. फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 9p स्क्वायर. आप उसको इंडिविजुअली सॉल्व करो. ओके, कंफ्यूजन होता है डायरेक्ट सॉल्व करने गए तो. So now see, first term is what? 81p to the power 4 minus 256 q to the power 4. Okay, so we will be using here identity 4. What is identity 4? It is x minus x square minus y square will be equal to what? X minus y multiplied by x plus y. Okay, so compare these two. कितना आता है? x square will come equal to what? It will come equal to 81p to the power 4. अभी मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. What is the square root of 81p raised What is the square root of 81? 9p. 9 p और raised to p 9. p to the power 4 का square. स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? p square. 9p square. Okay, 9p y square will be equal to 256 q to the power 4. तो y का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 256 का आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा q. 16q square. square. So what it will come then? 9p square minus 16q square in one bracket and 9p square plus 16q square in other bracket. These are the factors. अभी यहाँ पे देखो, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. और 3p raised to 1 minus 4 again 3p minus 4q. again for this part we can apply identity 4. 4. So apply it for this part again identity 4. So what it will come? It will come 3p 3p minus minus 4q 4q in one bracket. into the bracket 3p plus 4q 3p plus 4q. multiplied by 9p square plus 9 16q square. plus That's it. This is the most simplified form now. Sir, like this you have to do Yes. in most simplified form. Yes, yes. Okay, sir. Sir, if we write 9p square minus 16q square,
So it will be okay ना? नो नो नो, ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ये नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज रखा है, देखो। Okay, sir. Okay, so you will rejoin the session and we will be starting the exercise. Sir, which points we have to write? There are no such points to write here because already we have covered all these identities in previous chapter only. Okay, sir. Just revise those identities. Okay. सर इसमें कौन से पॉइंट्स लिखना है? अरे वही बता रहा हूँ ना, अभी कुछ भी नहीं है ऐसा लिखने जैसा। अभी कॉमन फैक्टर क्या लिखने जैसा कुछ है क्या उसमें? Rejoin the session. I will take the attendance.